सो क्लास, हैव यू एवर थॉट दैट हम मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? बिकॉज देर इज़ वन ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न दैट इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। एम आई राइट? हाँ, डेफिनेटली आप लोगों के पास एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ आंसर होंगे ये बताने के लिए दैट आई यूज़ माई मोबाइल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दैट इट परफॉर्म इन अ मल्टीपल वे। हम इसको मल्टीपल वाइज यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द मोबाइल सीम्स क्रूशियल टू अस रियली। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सच अ टॉपिक जो कि मल्टीपल यूजेस देता है हम लोगों को। सिमिलर वैसे ही है, वन ऑफ अ बिग चैप्टर, वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, okay, and one of a multitasker in the group of model we are going to talk about today. So let's have a look here what the topic is. The topic is your wood. Now when we talk about the wood, so there are total 6 uses of a wood here. Okay, so we have 6 different point. Okay, one by one, so let's check out. Number 1, as usual, it is wood, which take the meaning of your ga, gi and a gi. Don't worry, one by one we will just clear it out that how to use this thing. Okay, number 2 is your would like to. Now most of the time you have just heard about this thing and the means of your is चाहूँगा या फिर पसंद करूँगा. So that is here. The next one is your would mind, and the meaning of is your बुरा ना लगे तो. So that is your would mind. Number 4 is your would please. I literally don't know any particular meaning of this would please, so what I do, I use it for as a request sentence. Okay, number 5 is your would again. One more time, there is a would, so there is the one would and there is one would. Okay, the means of this would is gagegi. The meaning of this would is your ta, te and a ti. How it is different and how we use it, don't worry, we are going to use it and I'll just tell you that how to use it. Okay, just and the last one is your would have, and the means of it is your ya hota. That is the total 6 one is there. Okay, so have the screenshot here right now. So here we are with our first chapter, which is your would ga ge gi. Now there is also one more word now which is having the meaning of ga ge gi, which is will. Okay, you must be knowing about it that there is also one more word will. Now will का मतलब भी गागेगी होता है, would का मतलब भी गागेगी होता है. So what's the really differences here? याद ये रखिएगा कि would एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भी अकेला नहीं आता. ठीक है, इसको किसी न किसी एक चीज़ का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ते रहती है हमेशा ही. ओके, सो है ये थोड़ा सा डरपोक टाइप का. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट कि इसको यूज़ कैसे करते हैं. सच एज, अब देखिए विल और वुड में एक छोटा सा डिफरेंस है. ओके, अगर देखा जाए तो वुड जो है दैट इज़ अ पास्ट रिलेटेड फ्यूचर सेंटेंसेस. अब मतलब क्या निकल रहा है, एक ऐसा फ्यूचर का सेंटेंस जो कि पास्ट से रिलेटेड होता है. इसको समझने के लिए बिल्कुल एकदम सिंपल सा तरीका ये है, याद रखिएगा कि जो वुड वाला सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट के सेंटेंस के बाद आएगा. एक पास्ट का सेंटेंस है, साथ में फिर आप वुड वाला सेंटेंस बना सकते हैं कोई सा भी. ओके, सो दैट इज़ योर सब्जेक्ट, योर वुड इज़ हियर with the V1 and your object. ऐसा, this kind of a thing we go through. तो past sentence is compulsory. Okay, yes. So बनेगा कैसे देखा जाए अब. Now if we just talk about the past sentence here, so we have here total 4 kind of a past sentence. Number 1, जैसे कि अगर ले लिया जाए उसने कहा. Okay, तो उसने कहा कि मैं काम करूँगा. This one. So you can just check here that there are total 2 sentences. उसने कहा मैं काम करूँगा. Okay, and the last is having your ga. Okay, so same thing. So how the sentences will be here? उसने कहा, it will be your he said that I would work.
नाउ टू बी केयरफुल दैट डू नॉट यूज विल हियर, यहाँ पर आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी. ओके, इट विल बी ही सेड दैट आई वुड वर्क. दैट द फर्स्ट थिंग, ये पहला टेक्निक हो गया बनाने का इसको. नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा उसने कहा था, लाइक दैट. तो इट विल बी योर ही हैड सैड. अब इसके आगे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं दैट ही हैड सैड दैट आई वुड वर्क. उसने कहा था कि मैं काम करूंगा. इट कैन बी लाइक दिस. ओके, नंबर 3 इट कैन बी योर वो कह रहा था. सो इट विल बी लाइक ही वॉज सेइंग. इट कैन बी ही वॉज स्पीकिंग, वो बोल रहा था. इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है. सो ही वॉज सेइंग आई वुड वर्क विद यू. ये भी हो सकता है वो कह रहा था कि मैं भाई आपके साथ काम करूँगा. सो ईजी बनाना इसको. और नंबर 4 वो कहा करता था. सो दिस टाइम इट विल बी दैट ही यूज्ड टू से. ही यूज्ड टू से. नाउ अब इसके बाद हम जो भी सेंटेंस चाहें इसमें जोड़ सकते हैं. डिपेंड्स ऑन यू. जैसे कि अगर बनाया जाए उसने कहा था, क्या कहा था भाई. ओके, तो ही हैड सेड दैट आई वुड कम अर्ली. तो उसने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा. सिंपल. ओके, अब जैसे कि वो कह रहा था, ही वॉज सेइंग दैट वी वुड प्ले व्हाट, फुटबॉल, लाइक दैट. तो वो कह रहा था कि हम फुटबॉल खेलेंगे. अगेन, एंड द लास्ट वन दैट वो कहा करता था. ही यूज्ड टू से दैट आई वुड बिकम व्हाट, अ टीचर. तो वो कहा करता था कि मैं एक टीचर बनूंगा. नाउ इफ़ सम ऑफ यू नो द ग्रामर वेरी वेल, सो यू मस्ट बी नोइंग कि यहाँ पर हम लोग जो चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये है नरेशन. ओके, तो हाँ, ये वही नरेशन है. नरेशन में आप जानते हैं कि अगर पहला सेंटेंस अगर पास्ट है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट रखा जाता है. एंड दोज हु हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द इंग्लिश, सो दे मस्ट बी नोइंग कि विल, अगर विल है तो विल इज़ अ फर्स्ट फॉर्म. विल जो है वो पहला फॉर्म है. विल का अगर हम सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो इट इज़ योर वुड. विल का सेकेंड फॉर्म होता है वुड हमारा. ओके, जैसे कि गो का वेंट होता है, सिट का सैट होता है, बाय का बॉट है, एंड लुक का लुक्ड. इन द सेम वे विल का वुड होता है. ओके, इज अ सिमिलर वॉइस. सो इफ द फ्रंट सेंटेंस, इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज अ पास्ट, डेफिनेटली द सेकेंड सेंटेंस नीड टू बी पास्ट. Okay, so that is the first uses of your would. Okay, so I hope that it is clear to you. Thank you so much for joining.